विदेश ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਨੂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਨੂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਨੂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਨੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਨੂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਿਸਿੰਗ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੋਨੂ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਰੂਮਮੇਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਨੂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਮਮੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਨੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਉਧਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਨੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ की बयान है, की कुछ कहना है उन्होंने जान लेने। बेटे मेरा बच्चा 2 साल से यूएसए में था और वो डोरडैक्स का काम करता था। तो मेरे को कल 10:30 बजे पता लगा रात को कि भी जो वो काले हैं उन्होंने उसको गोली मार दी और उसकी वही मौके पे डेथ हो गई। मैंने रिश्तेदारों से कर्जा लेके लोन लेके बच्चे को बाहर भेजा था, उसकी भी अभी भरपाई नहीं कर पाया। पहले मेरे साथ ही हादसा हो गया। मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बच्चे की बॉडी हमारे घर पे आए, हमारी सहायता की जाए। जो मेरे भाई बंद है अमेरिका में वो भी कुछ सहायता करे और मेरे बच्चे की बॉडी यहाँ आए, अपने हाथों से उसका दाह संस्कार कर सके। कल मेरे पास ना 9 बजे के करीब फ़ोन आया तो वो कहने लगे कि भाई वो सुबह 4 बजे गाड़ी लेके गए थे और वापस नहीं आए, किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है ना, 2 साल से 4 बजे निकले थे घर से, मतलब सुबह। हाँ जी, 3 से 4। हाँ जी, हाँ वहाँ के सुबह के 4 बजे। अच्छा। नहीं यहाँ के। तो हमारे पास तो रात को 9 बजे फ़ोन आया। ठीक है ना, तो पता लगा कि भाई हमारे बीच अब मेरा भाई नहीं रहा और इसीलिए हम बहुत परेशान और सबसे यही अनुरोध करते हैं जो हमारे भारतवासी वहाँ गए हुए हैं और हमारी भारत की जो नेता लोग हैं वहाँ मेरा भाई यहाँ पे भेज दीजिएगा। मैं आप सबका आभारी हूँ, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे मेरा भाई चाहिए और हम उसका अपने हाथों से अपनी आंखों से उसको देख के उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, तभी हमारी आत्मा ठंडी होगी, वरना हम परेशान होए फिर जाएंगे। हमारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। बस 2-2.5 साल से यूएसए में रह रहा था जी। अपना डेली रूटीन की तरह अपना काम पे आना जाना। क्या काम करते थे? वो स्टोर पे भी लगे हुए थे और फूड डिलीवरी का भी काम करते थे जी।
डेली रूटीन की तरह अपने डेली काम पे जाना करना, अपने काम से मतलब रखना, ना किसी से कोई द्वेष भावना, कुछ भी नहीं कोई ऐसा, ना किसी के साथ बैर। भी कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके हम बोल दे भी कुछ का बैर था, किसी से कोई मतलब इंटरफेयर ही नहीं रखता था। मतलब ये समझ में ही नहीं आ पा रहा कि आखिरकार क्यों गोलियां हाँ मारी बिल्कुल गई हैं। बिल्कुल भी कोई मैटर तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो सामने आए, कुछ बात तो पता लगे। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अपने काम से डेली रूटीन की तरह उसके रूममेट का फ़ोन आता है, अभी ऐसे ऐसे करके बात हो गई है। अब सारा परिवार इस समस्या में पड़ा हुआ। अब इतना बड़ा हादसा कैसे कैसे हो गया ये, दूर दूर तक भी जिस हादसे की जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करी जा सकती भी ऐसा किसी बच्चे के साथ हो जाए बाहर विदेश में। आखिरी मैं बार तो फोन कब आया था मोनू को, कब बातचीत हुई वो थी? परसों बात हुई थी जी ताई जी परसों की। बात हाँ हुई जी, थी। उसके बातचीत उनका फ़ोन का कोई लेना नहीं देना ठीक कुछ था पता वैसे, कोई नहीं। ऐसा हाँ कोई वैसे लड़ाई ठीक झगड़ा था, के बारे कोई में लड़ाई कुछ झगड़ा कुछ भी नहीं था ऐसा, हर प्रकार से ठीक था। हेल्थ वेल्थ बिल्कुल कोई टेंशन कुछ ही प्रकार की नहीं थी, सब प्रकार से डेली रूटीन की तरह ऐसे अपने काम पे जाना करना। ये तो पता ही नहीं था भी आज का दिन कल का दिन उसका लास्ट दिन रहेगा। ये मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से और जो यूएसए में मेरे इंडियन भाई रहते हैं उन सभी से भी हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि मेरे भाई के साथ तो जो होना था वो हो गया। आप सभी से एक ही अपील है कि उनकी डेड बॉडी को हमारे पास कम से कम पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। तो जो बाकी लड़कों को भी गोलियां लगी उनको जानता था मोनू? नहीं मैम, उनको नहीं जानता नहीं था। जानता। ये तो हमें Indians बात थे वो भी? है मैम, ये नहीं कुछ कह सकते। कुछ उसमें जानकारी। बच्चे भी बता रहे हैं, एक दो लेडीज भी बता रहे हैं। वहाँ की जो न्यूज़ सुनी है, जो वहाँ के जो बॉयज रहते हैं कार्रवाई चल जनरल- रही है पुलिस की तरफ से वहाँ मैम पे? कुछ नहीं कह सकते जी अभी, ना वहाँ पे है ना कोई इतना नोन में है अभी कुछ हम डीपली वही जो उसके बारे roommate में। है वही जानकारी बिल्कुल दे रहा है। बिल्कुल, रूममेट था जो उनका जो साथ में रहता था, उन्होंने हमें बताया। जो वहाँ की न्यूज़ देखी करी, जो उन्होंने डिटेल भेजी उसके हिसाब से हम बता रहे हैं जी। बाकी तो वो मालिक जानता है जी। हम कोई मतलब किसी प्रकार का ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं